So when I say ozonolysis, lysis. So the moment I say ozonolysis, this is again what we can say here is this is ozone है और ये lysis है. So we can predict from this one, यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि lysis by ozone. So we can write here lysis by ozone. Lysis by ozone. And so this is lysis मतलब breaking down, and ozone हमारा O3 है. So what the advantage of this O3 is? O3 is a molecule that can easily dissociate to O2 and nascent oxygen. ये बनता है. And therefore we can see when I write this oxygen is basically क्या है? ये oxidizing agent की तरह काम करता है. And therefore we will talk about that. यानी ये basic जो functionality है इसमें ओजोन का, ये it's acting as an oxidizing agent की तरह यह काम करेगा. So ओजोनोलाइसिस में ओजोन का फंक्शन है कि वो जो सब्सटेंस हम लोग यूज कर रहे हैं उसको वो ऑक्सीडाइज करेगा, एंड डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ये स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करेगा या वीक की तरह बिहेव करेगा, इट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन द कंडीशन वी आर यूजिंग. एंड सो लेट अस सी हाउ एंड वेयर इट इज यूज्ड, कैसे काम करता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर अब चर्चा करते हैं यहाँ पर. Hello. So when I say this ozone is acting as oxidizing agent, तो इसमें ये important है हमें ये समझना कि ये जो oxidizing agent है, so to what extent it would be oxidizing, यानी कितना और कैसे ऑक्सीडाइज करेगा ये डिपेंड करता है इस बात पर कि उसकी आपने कंडीशन क्या ले रखा है. So we basically discuss two conditions. पहला हम लोग बोलते हैं that is called oxidative ozonolysis. Oxidative ozonolysis, जिसमें कि डिफरेंस कुछ भी नहीं है सिवाय इस बात के कि यहाँ पर क्या होगा कि O3 में हमें जस्ट H2O लेना होता है, O3 एंड H2O, बस दैट्स इट. यही हमारा रिएजेंट है, ये हमें ध्यान रखना है. जब O3 और H2O दिया हुआ है, सो वी कैन दिस इज योर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस हो गया. When we have the next one, like second one is called reductive ozonolysis. Reductive ozonolysis. So when I say reductive ozonolysis, in this case we need or we add something which is a reducing agent. इसमें हमें कुछ एक reducing agent को भी हम लोग इसमें add कर देते हैं ताकि ये जो nascent oxygen हमारे पास बनता है वो further और oxidize ना कर सके और reaction बीच वाले step पे रुक जाए. And therefore the reagent used for this one is, इसके लिए जो हमारे पास reagent होता है वो होता है कुछ इस तरह का, like this one. Suppose जैसे मैंने यहाँ पर ये लिखा है, so in this case reductive ozonolysis में होगा यही O3 रहेगा. O3 में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर O3 Zn and H2O यूज कर लेते हैं, या फिर O3 with Me2S dimethyl sulfide यूज कर लेते हैं in presence of CH2Cl2. ये solvent है, this one is your solvent. So first thing what? So ozonolysis reaction is carried out in two ways. Number one is the first stage only with pure H2O, सीधे हमने लिया, कोई reducing agent present नहीं है. In that case it is called oxidative ozonolysis. और ये जो oxidative ozonolysis है ये वाला क्या है, stronger होता है, stronger. और यहाँ पर क्या है, reductive ozonolysis है. जब आप reductive बोलते हो इसमें हमें एक reducing agent का भी हमें उपयोग करना होता है. जैसे in this particular case, जैसे मैं यहाँ पे देखूं तो इसमें ये जो जिंक है हमारा या ये Me2S है, so these are acting as reducing agent की तरह यह काम कर रहा होता है. So this one is acting as reducing agent, right? So this is called reductive ozonolysis कहलाता है ये वाला. तो इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एंड इससे देखेंगे कैसे ये अप्लाई होता है.
So again we can say here this is जो हमारे पास ozonolysis reaction है, it is being affecting C double bond C. So this is affecting C double bond C और C triple bond C. C double bond C और C triple bond C को ये affect करता है. और कैसे affect करता है, पहले simple plain reaction देखेंगे और फिर उसके बाद हम लोग इसके बारे में, इसके mechanistic details के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे. So what the primary thing that we need to remember here is, सबसे पहली बात जो हमें बहुत ही बढ़िया तरीके से याद होनी चाहिए वो ये है कि ओजोनोलिसिस दो तरीके से की जाती है. पहला हमारे पास है ऑक्सीडेटिव, जिसमें कि सिर्फ O3 और H2O हमने ले रखा है. दूसरा है रिडक्टिव. रिडक्टिव में जिंक, यदि आपको ओजोन के साथ जिंक दिखाई दे जाए या Me2S दिखाई दे जाए तो वो हमारा क्या है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है. और उस केस में जो रिडक्शन, जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा वो कंप्लीट नहीं होकर के पार्शियल ही रहेगा. एंड सो दिस इज हाउ दीज टू कंडीशंस आर डिसाइडिंग द नेचर ऑफ प्रोडक्ट. अब वही देखना है हमें इसमें कि कैसे ये बाकी प्रोडक्ट को डिसाइड करेगा, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे. A simple reaction is that कि जब भी हम लोग यहाँ पर C डबल बॉन्ड C या C ट्रिपल बॉन्ड C लेते हैं तो हमें दो बॉन्ड को तोड़ना होता है. सो सिंपल रूल इज दिस, यहाँ पर यह है, एक यदि मैं रूल्स की टर्म्स में बात करूं तो वी कैन राइट इट इन दिस वे, कुछ ऐसे लिख सकते हैं इस चीज को कि जस्ट कट द डबल बॉन्ड. सो द रूल वुड बी, रूल इज cut the double bond, cut the double bond and paste oxygen, and paste oxygen. This is the simplest rule. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन के लिए जो बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस होते हैं, जो प्राइमरी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, that can be solved using this particular rule. बस यदि हम इतना भी याद कर लें तो हमारे लिए sufficient है, यानी that would help us to determine the product. प्रोडक्ट को बताने के लिए इतना हमने लिख लिया, इतना हमने याद कर लिया, इसको हमने समझ लिया तो हमारा पर्पस सॉल्व हो जाता है. फॉर एग्जांपल इफ आई टेक, सपोज हमने यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड C लिया. अब इस C डबल बॉन्ड C को हमने ऐसे कट करना है यहाँ पर. अब हमने इसमें O3 ZnH2O लिया हुआ है. ये बेसिकली रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के लिए है, RO के लिए है ये वाला. सो दिस इज O3 ZnH2O लिया हमने यहाँ पर. तो क्या करना है इसमें, देखो डबल बॉन्ड को कट कर देना है. यानी व्हाट आई एम डूइंग इज जस्ट मैं यहाँ पे ये ऐसे लिख रहा हूँ इसको. यहाँ से देखना बच्चों, इसमें डबल बॉन्ड में थोड़ा सा बड़ा सा लिख रहा हूँ ऐसे. ये बड़ा सा लिख दिया, यहाँ पर थोड़ा सा और बड़ा ले लेता हूँ मैं ताकि आपको कट करे तो फिर आपको दिख जाए. यहाँ पर ये C है और ये डबल बॉन्ड ऐसे हमने कर दिया. हमें क्या करना था, मैंने क्या कहा था आपसे, इसको कुछ नहीं करना, आपको सीधा कट कर देना है और ऑक्सीजन पेस्ट कर देना है. यानी आई एम जस्ट जॉइनिंग देम लाइक दिस. पहले मैंने इसको ऐसे दिखाया, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कट कर रहा हूँ. सो इफ आई जस्ट कट इट लाइक दिस, मैंने इसको कट कर दिया. सो जस्ट कट द डबल बॉन्ड. हमने यहाँ पे डबल बॉन्ड को कट कर दिया. अब हमें क्या करना है, यहाँ पर पेस्ट ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन को पेस्ट करना है, बस पेस्ट कर दो. सो इफ आई नीड टू पेस्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लगा दिया, ये वाला ऑक्सीजन लगा दिया, बीच में प्लस लगा दो. तो क्या बन गया हमारे पास, ये C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O ऐसे बन गया. So we can say for reductive ozonolysis this rule works well. कहीं पे कोई confusion नहीं है, कहीं पे कोई doubt नहीं होना चाहिए इसमें. For example, एक और एग्जांपल लेके देखते हैं. सपोज मैंने जैसे ये ले लिया, let us take this one. ये है हमारे पास डबल बॉन्ड, ऐसे लिख लिया, कुछ नहीं करना, सेम है हमारे पास. So this would be डबल बॉन्ड O plus HCHO, ये बन जाएगा. इंस्टेड ऑफ दिस सपोज मैंने इसमें ये ले लिया, मान लो हमने यहाँ पर इसको ऐसे कर दिया, रिंग के अंदर डबल बॉन्ड लगा दिया. नाउ व्हाट विल हैपन इन दिस केस, यहाँ से हमें कट करना है और उसको पेस्ट कर देना है. एंड देयरफॉर इट वुड बी कैसा हो जाए, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है. तो पहले आप 6 कार्बन को ओपन चेन बना लो, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगा दो. ये डबल बॉन्ड O और ये डबल बॉन्ड O हमने यहाँ पे लगा दिया. सो दिस इज द प्रोडक्ट दैट वी हैव गॉट आउट ऑफ दिस वन. So this is the simple one. जब हम लोग इसमें H2O, जब जिंक नहीं होगा तो जिंक का क्या रोल है, and all that would be clear with the help of mechanism, से हमें समझ में आ जाएगा वो चीज. Instead of this, suppose जैसे मैंने इसमें यहाँ पर ये नहीं लिया होता, like suppose हमारे पास एक ट्रिपल बॉन्ड ले लेते हैं इसमें, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C ले लिया मैंने यहाँ पर. तो यहाँ पे क्या करना है, CH3 लगा दो. So when I need to this one, यदि मुझे इसको ब्रेक करना है तो कैसे ब्रेक करेंगे, अगेन फंडामेंटली वही काम करना है.
वही काम करने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ से सीधा कर दे डबल बॉन्ड पेस्ट ऑक्सीजन, तो यहाँ से क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O एंड CH3H हियर, ये वाला ऐसे आ गया हमारे पास। अब when we use when this oxidative part is taken, जब हम लोग इसमें ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस कराते हैं, when no zinc or Me2S is present, Me2S is present, in that case what we can do is, वहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, सीधी सी बात है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है, ये इसको फर्दर यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, एंड जब जिंक नहीं होगा तो वो इसको फर्दर ऑक्सीडाइज कर देगा, एंड देयरफॉर सिंपल सा रिएक्शन ले लेते हैं हम लोग। सपोज जैसे मैंने ये ले लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, सो द सिंपल रूल इज दैट कि जहां पर डबल बॉन्ड के अक्रॉस हाइड्रोजन है, जहां पर हाइड्रोजन है, इसमें ये हाइड्रोजन है यहाँ पर, तो वहां पर क्या बनेगा, एसिड बनेगा। The point or the carbon attached to double bond, carbon containing double bond, carbon containing double bond having hydrogen, it will give you acid, carboxylic acid बना देगा। यदि no hydrogen, in that case it would be giving us ketone. So remember, in no case aldehyde would be the product. In no case aldehyde would be the product. Aldehyde would be the product of oxidative ozonolysis. Oxidative ozonolysis में कभी भी, ओजोनोलाइसिस में कभी भी हमारे पास एल्डिहाइड जो है वो एक प्रोडक्ट नहीं बना सकता है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू रिमेंबर हियर, एंड देयरफॉर यदि मैं इसमें प्रोडक्ट को प्रेडिक्ट करूं, सो वी कैन प्रेडिक्ट इट इन दिस वे, कुछ ऐसे हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन है तो इसका ये एसिड बन जाएगा, CH3 COOH बन गया, और यहाँ पर चूंकि कोई हाइड्रोजन है नहीं तो यहाँ से ये वाला क्या बना देगा, ये C डबल बॉन्ड O और ये CH3 और ये CH3 यहाँ पे ऐसे बन जाएगा। So this is how we can write the product in this particular case. Oxidative में, so the product of oxidative ozonolysis is what? In that case acid बनेगा और ketone बनेगा, acid और ketone. On the other hand, यदि मैं reductive ozonolysis की बात करूं तो वहां पर जो प्रोडक्ट बनता है वो aldehyde और ketone बनता है। So reductive ozonolysis gives aldehyde और ketone. Reductive ozonolysis gives aldehyde or ketone, and oxidative ozonolysis gives acid or ketone. Similarly we can say here इस वाले में acid नहीं बनेगा, so here no acid is formed, acid big cross करना है इसको, acid में not possible। इसमें यदि हमने देखा यहाँ पर acid और ketone, इसमें aldehyde not possible, aldehyde यहाँ पर possible नहीं है। So this is the key of this particular reaction. Here what we can add is, when you are using reductive ozonolysis, in that case क्योंकि यहाँ पर जिंक है तो जिंक ऑक्सीडाइज होकर के ZnO बना देता है। So here what we are getting is oxidative, यहाँ पर reductive वाले में जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। Similarly यदि मैंने जिंक के बदले Me2S यूज कर लिया तो हमारे पास क्या बन जाएगा, Me2S। मान लो इसमें मैंने Me2S और CH2Cl2 डाल दिया, Me2S CH2Cl2, so in that case it would be forming dimethyl sulfoxide बना देगा, S डबल बॉन्ड O और ये Me2S। देखो ये वाला Me2S था, पहले Me लगा दिया हमने यहाँ पर, तो ये Me2S था, Me2S से Me2SO यानी DMSO, डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड, ये वाला क्या है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, ये वाला बन जाता है हमारे पास। सो दैट इज व्हाट द रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में ये एक एडवांटेज है कि यहाँ पर जब जिंक होगा तो जिंक इज जस्ट गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड टू ZnO and Me2S is oxidizing to this Me2SO, so that कि ये जो हमारे पास HCHO है वो बचा हुआ रह जाता है, उसका फर्दर ऑक्सीडेशन एसिड में नहीं होता है। So we'll see about its mechanism की बात हम लोग करेंगे अभी इसमें, so let's see that.
So mechanism of ozonolysis. So when I say mechanism of ozonolysis, again, mechanism is essentially started from the basic structure of the given compounds. कहने का यहाँ पर यह पॉइंट है कि जो भी हमारे पास गिवन स्ट्रक्चर कंपाउंड का दे रखा है, हमें पहले उसको ओपन करके लिखना है. ओपन करके लिखना है मतलब उसका प्रॉपर लुईस स्ट्रक्चर हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि लुईस स्ट्रक्चर होगा तो हम उसमें ये देख सकते हैं कि कहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है और कहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है. जहां भी डेफिशिएंसी होगा वहां पर जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा वो डोनेट करेगा, और वी कैन से कि electron rich is donating to electron deficient center, or electron deficient center would be accepting electron from electron rich center. So for that purpose we can see, suppose हमने यहाँ पर जैसे C double bond C लिया, this is your alkane है, alkene हमने ले रखा है यहाँ पर. I am just taking O3, तो O3 का जो हमने यहाँ पे लिखा है O3 ZnH2O. So let us have a look at this ozone. जो आप इसका ओजोन का स्ट्रक्चर लिखते हैं तो कुछ ऐसा बनता है. ये वाला ओजोन इज समथिंग लाइक दिस. इसका जो लुईस स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा होगा. यहाँ पर एक लोन पेयर भी है और ये वाला ऐसे, ये O माइनस बना, एक लोन पेयर, दो लोन पेयर, तीन लोन पेयर. यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है एंड वन लोन पेयर इज देयर. यहाँ पर दो लोन पेयर है. सो इफ आई से ओजोन, so ozone is basically what? ओजोन का स्ट्रक्चर, ये नेट चार्ज जीरो हो गया, प्लस माइनस मिला के जीरो है. इस ऑक्सीजन एटम पर तीन लोन पेयर, इस ऑक्सीजन पर एक लोन पेयर और इस वाले ऑक्सीजन पर दो लोन पेयर. तो यदि आपसे कहीं क्वेश्चन में ये भी होगी ओजोन में जो ऑक्सीजन है वो तीनों में कैसा स्ट्रक्चर होता है, सो वी कैन से इफेक्टिवली, यदि मैं इसका लोकलाइज्ड फॉर्म की बात करूं, लोकलाइज्ड मतलब जो कैनोनिकल फॉर्म है उसकी बात करूं, तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि तीन ऑक्सीजन है तो वो तीनों तीन तरह के होते हैं. एक पर नेगेटिव चार्ज है, एक पर पॉजिटिव चार्ज है और एक पर कोई चार्ज नहीं है. दूसरा, एक पर तीन लोन पेयर है, एक पर एक लोन पेयर है और एक पर दो लोन पेयर है. However, they do exist in their hybrid form में exist करता है. लेकिन यदि हाइब्रिड में करेगा मतलब ये हो गया कि ये वाला जो डबल बॉन्ड है और ये सिंगल बॉन्ड है, दोनों का लेंथ होगा बराबर. Now with this oxygen, यदि हम इसकी बात करें, ये this is carrying a positive charge because इसके साथ नॉर्मल वैलेंसी कितनी है? नॉर्मल वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 2. नॉर्मल कंडीशंस की हम बात करें तो ऑक्सीजन केवल दो बॉन्ड बनाता है, बट यहाँ पर कितने बॉन्ड्स हैं? एक और एक्स्ट्रा हमने ऐड कर दिया, तीन बॉन्ड बना दिया. सो इन जनरल नोमेनक्लेचर का ये तरीका होता है, या उसमें एक हम लोग सिस्टम देखते हैं कि जब भी वैलेंसी एक से एक्सटेंड होती है, when valency is increased by 1, it carries a positive charge. इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया. नाउ खैर वो हमारा बहुत इंटरेस्ट की बात हमारे लिए नहीं है. द इंटरेस्ट पॉइंट जो हमारे पास है वो ये है कि इसके आगे हम करेंगे क्या. सो दिस इज इट ड्यूटेरायन? नो, दिस इज नॉट अ ड्यूटेरायनिक फॉर्म. ये नहीं है. क्यों ड्यूटेरायनिक फॉर्म नहीं है? बिकॉज दिस एज हम जो ने डिफाइन किया था ड्यूटेरायन को, हमने डिफाइन ऐसे किया था कि नॉन एडजेसेंट एटम पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होना चाहिए. सो दिस इज नॉट अ ड्यूटेरायन, रिमेंबर दिस वन. फॉर दैट यू कैन सी, जो हमने एमिनो एसिड पढ़ा था आप उसको YouTube लिंक पे भी देख सकते हैं. यू कैन गो टू दैट आल्सो. बट बिफोर दैट लेट्स नॉट गोइंग इनटू डिटेल ऑफ दैट ड्यूटेरायनिक फॉर्म. सीधी सी बात, हमने ये ध्यान रखना है, ड्यूटेरायन मतलब ये होता है जिसमें कि अपोजिट चार्जेस जो है वो नॉन एडजेसेंट एटम पे हो. सो दिस इज नॉट अ ड्यूटेरायनिक फॉर्म. ना O माइनस है, यानी डेफिनेटली O माइनस, और ये लोन पे तीनों के पास है, डोनेट कौन करेगा? ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर जिसमें नेगेटिव चार्ज है वो वाला इलेक्ट्रॉनिक सेंटर ज्यादा होगा, एंड सो इट हैज मोर टेंडेंसी टू डोनेट इन कंपैरिजन टू द रिमेनिंग टू ऑक्सीजन लाइक दिस वन. सो व्हाट हैपेंस इज, यहाँ से यदि मैं इसको ऐसे ट्रांसफर करूं, सो इट वुड बी गोइंग लाइक दिस वन, कुछ ऐसे ही जाएगा. O माइनस इज जस्ट गेटिंग अटैच्ड टू दिस कार्बन. जैसे ये यहाँ पे गया, अब ये ऐसे यहाँ पर पहुंच गया. ठीक. And so again, if I ask you what would be its molecular orbital description, so you can think of that I will be asking to you first. So just think about that also. Molecular orbital description में क्या होगा वो हमें देखना है, but that is again next part होगा हमारा. पहले देखते हैं इसे बना क्या. So the next step would be, जब हमने यहाँ से ये माइनस इस कार्बन को डोनेट कराया, so obviously यहाँ से क्या हो जाएगा, in that case
या हम इसको ऐसे समझ लेते थोड़ी देर के लिए, यदि मैं इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दूं, एक पर पॉजिटिव और एक पर नेगेटिव, तो ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव के साथ जुड़ जाएगा, और जो पॉजिटिव है, जहाँ पॉजिटिव वाला नेगेटिव और नेगेटिव वाला पॉजिटिव के साथ. So from that we can see this negatively charged oxygen is attacking on this carbon, and as a result ये वाला क्या बन गया, माइनस बना यहाँ पर. अब जैसे ये वाला इसने इधर डोनेट किया, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो पाई बॉन्डेड है यहाँ पर, this would be attracting this one. As a result what will happen? So we can write here the structure would be like this one. ये कुछ ऐसा डबल बॉन्ड टूट गया यहाँ से, और ये जो हमारे पास बॉन्ड बना वो कुछ ऐसा बन जाएगा, ये O, ये O और ये O. So we can write here this is called मोलोजोनाइड. मोलोजोनाइड, ये मोलोजोनाइड बन गया. When we have got this मोलोजोनाइड, अब इसके बाद हमें क्या करना है यहाँ पर, नेक्स्ट स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ ओजोनाइड होता है यहाँ पर. यानी इसके पहले भी इसमें बीच वाला एक स्टेप है, उस स्टेप को देखते हैं. तो यहाँ से नॉर्मली क्या करते हैं लोग बाग, ये बना दिया, ये भी नहीं बनाया डायरेक्टली, यहाँ से देखो बीच वाला कौन सा स्टेप गायब हो जाता है, उसको हमें देखना है. सो द नेक्स्ट स्टेप वुड बी समथिंग लाइक दिस वन. जो हमारा होगा वो काफी इंपॉर्टेंट है, हमें थिंक करना है, सोचना है कि इससे जो आपने नॉर्मल स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, ये वाला पढ़ा होगा आप लोगों ने स्ट्रक्चर, ये वाला ऐसे लिया, ये सी है, ऐसे ऐसे, ये हमने यहाँ पर कुछ और बना दिया, हमने यहाँ पर कुछ और बना दिया, कुछ ऐसा, ये ओ और ये ओ, ये ऐसा बना दिया. यहाँ तो ऐसा नहीं, यहाँ तो तीनों ऑक्सीजन इकट्ठे हैं. सो रिमेम्बर अगेन, तो ये वाला कैसे बना, कैसे, वहां पर हम लोग यहीं तक पहुंचेंगे अभी. जस्ट कैन यू थिंक अबाउट दिस, मैंने सोचो थोड़ा सा इसके बारे में, देन आई विल एक्सप्लेन. सो लुकिंग एट दिस वन, if I say to this, so it goes like this way, कुछ इस तरह से ये होता है यहाँ पर कि I'm just breaking this particular bond. यहाँ पर ये वाला बॉन्ड टूटता है, कैसे टूटेगा उसी की हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं. And so here it is, in fact it goes like this one. ये वाला होता है कुछ इस तरीके से कि यहाँ से हमने लिया ये वाला, just take this one, ये लोन पेयर लिया हमने, और इस लोन पेयर से डोनेशन करना स्टार्ट करो. So when you start with this lone pair, so this H going here, ये वाला गया यहाँ पर, तो जैसे ये वाला यहाँ जाएगा, so as a result what will happen, this would be here, ये इधर और ये इस साइड. So we can say from this, देखो यहाँ पे क्या सब हो गया, इसको आप ऐसे समझो, we can imagine or we can assume, we can understand. यदि मैं इसको ऐसे थोड़ी देर के लिए मान लूं कि मैंने इस वाले C और C के बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, आपको ये सोचना है कि मैंने कार्बन और इस कार्बन के बॉन्ड को तोड़ दिया प्लस और माइनस में. यदि मैंने प्लस और माइनस के फॉर्म में तोड़ दिया, तो इमेजिन करते हैं कि यहाँ पर इस वाले पर प्लस चार्ज आ गया. जस्ट थिंक ऑफ इट कि यहाँ पर ये प्लस चार्ज आ गया, जस्ट इमेजिन करो एक बार. यदि यहाँ पर यह प्लस चार्ज आएगा, तो लोन पेयर जो है ऑक्सीजन का, इसने इसको डोनेट कर दिया, तो जैसे ही डोनेट करेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, हमारे पास डबल बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ पर ये वाला इधर O है. नाउ थिंक अबाउट दिस वन, अब यहाँ से क्या होगा कि जैसे ये डबल बॉन्ड इधर बना, सो एज ए रिजल्ट, और ये माइनस है, तो माइनस है, तो ये वाला इधर, ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया हमने, इसका इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर दिया, तो ये ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ गया, और ये जो माइनस और प्लस मिलके क्या हो जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा. एंड सो दैट वे वी कैन प्रेडिक्ट, जो इससे स्ट्रक्चर बनेगा हमारे पास, तो एक स्ट्रक्चर बन जाएगा ऐसे, ये C, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड O और ये O, तो ये O माइनस बन गया, और यहाँ पर ये प्लस चार्ज है, और जो दूसरा बनेगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड O और ये लगा हुआ है ऐसे. जो सेकंड वाला बना है हमारे पास, वो कुछ होगा इस प्रकार का, यानी इसका जो स्ट्रक्चर होगा दैट वुड बी C डबल बॉन्ड O, यानी यहाँ पर ये ऐसे मैं लिख लेता हूँ इसको, C डबल बॉन्ड O, और हमने इसको ऐसे जोड़ दिया. अब देखो बच्चों, इसमें ये जो हमने C डबल बॉन्ड O बनाया ये वाला, अब क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट. अब देखना, इसको ऐसे लिखने के बजाय इफ आई राइट इट इन दिस वे, इसको उल्टा करके मैं लिख देता हूँ. C डबल बॉन्ड O जो हमने यहाँ पे लिखा है ना, इसको ऐसे, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा करके लिखता हूँ, ताकि आपको वो दिखना अच्छी तरह से वो दिख जाएगा, इसीलिए. So I'm just writing this C double bond O in different way like this way.
ऐसे करके मैं लिखूंगा इसको, ये C है और ये O मैंने इधर ऐसे लिख लिया, ये डबल बॉन्ड O ऐसे बना दिया और ये दो बॉन्ड्स ऐसे, यानी ये इस CO को मैंने ऐसे लिखा है, ये वाला जो CO है हमारे पास, दिस वन, इसको मैंने इस तरीके से लिख लिया। नाउ अब देखो यहाँ पर O माइनस है और यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव, सो दिस इज जस्ट गेटिंग अटैच्ड टू दिस। जैसे ही ये गया यहाँ पर, नाउ दिस O माइनस बनेगा और ये O माइनस वुड बी अटैकिंग ऑन दिस कार्बन। सो एज ए रिजल्ट अब यहाँ से देखो क्या बन जाएगा, सो यू विल हैव दिस वन। तो इससे जो बनने वाली स्पीसीज होगी वो हो जाएगी यहाँ पर, देखो इसमें हमने क्या करना पड़ता है, सी को लिख लेते हैं हम लोग, ये सी, ये ऐसे, ये ऑक्सीजन इधर हो गया। अब यहाँ से एक ये बॉन्ड बना हमारे पास, तो जो बॉन्ड बना है उसको मैंने ऐसे लिख लेना है, यहाँ से ये O लिखा और हमने यहाँ पे इसका एक बॉन्ड बना दिया ऐसे। पर इसी को लिख लेते हैं, यहाँ से ग्रीन कलर वाला ही बॉन्ड ले लेते हैं कुछ ऐसा। अब ये वाला C था, अब इसको मैंने ब्लू कलर से दिखा रखा है, तो उसी से मैंने दिखाना है। ये कार्बन लिया, फिर यहाँ पर ये दोनों ऐसे का ऐसे ही रहेंगे, ये दोनों ऐसे, और देखो नीचे में हमारे पास क्या है, यहाँ से जब ये वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये वाला भी क्या होगा, यहाँ से इस साइड ये शिफ्ट हुआ। सो एज ए रिजल्ट इट वुड बी फॉर्मिंग ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन और ये ऐसे चला गया। नाउ दिस इज कॉल्ड ओजोनाइड, यही हमारा क्या है, ओजोनाइड है। सो ये है ओजोनाइड। पहले मोलोजोनाइड बना था, ये हमने बनाया था, अब क्या बन गया, ये ओजोनाइड बन गया। अब देखना बच्चों, यहाँ से बहुत ही सीधी सी बात है, जब इसमें H2O ZnO और H2O की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, सो व्हाट विल हैपन इन दिस केस। यहाँ भी क्या था, पहली बात तो मेरा सवाल इसमें ये है कि ये वाला क्यों टूटा, व्हाई हैज दिस बॉन्ड ब्रोकन। तो जब मैं ये कहता हूँ ये बॉन्ड क्यों टूटा, इसका एक बहुत ही सीधा सा लॉजिकल रीजनिंग है कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 5 मेंबर का ही रिंग है एक, पहला। दूसरा, तो 5 मेंबर रिंग हमेशा ऐसा तो है नहीं कि ये टूट ही जाता है, स्टेबल भी होते हैं, साइक्लोपेंटेन बहुत बढ़िया स्टेबल है। बट इफ आई आस्क यू व्हाट अबाउट H2O2, H2O2 क्यों अनस्टेबल होता है, क्यों टूट जाता है, डिकम्पोज क्यों कर जाता है, बिकॉज उसके बारे में हमने ये पढ़ा था कि जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है उसमें रिपल्शन है। तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन आ गए, 1 2 और ये 3 आ गए ऑक्सीजन हमारे पास। जब 3 ऑक्सीजन है तो इसमें रिपल्शन और ज्यादा होगा, तो दिस इज हाईली अनस्टेबल। ये जो हमारे पास मोलोजोनाइड है ये हाईली अनस्टेबल है, दिस इज हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट लिखने का मतलब क्या है, इंटरमीडिएट लिखने का मतलब है कि दिस इज नॉट इंटरमीडिएट, ओजोन का ये इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर नहीं है, बट दिस इज इंटरमीडिएट मींस इट इज प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेबल, यानी ये एक्सपेरिमेंट के दौरान ये बनता है, इसका फॉर्मेशन होता है। सो वी कैन से दिस इज हाईली अनस्टेबल इंटरमीडिएट है ये वाला। एज ए रिजल्ट ये पहले इसमें कन्वर्ट हुआ। अभी भी बात खत्म नहीं हुई, क्यों नहीं खत्म हुई, क्योंकि यहाँ पर भी लोन पेयर है, यहाँ भी ऑक्सीजन का वही फिर से पेरोक्साइड लिंकेज अभी भी है। तो फिर से जब पेरोक्साइड लिंकेज है तो क्या होता है, यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटेगा, और जब ये टूटेगा यहाँ से, सो एज ए रिजल्ट व्हाट विल हैपन, सपोज जैसे मैंने इसको ऐसे ब्रेक कर दिया, यहाँ ऐसे ब्रेक करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये वाला जैसे ये टूट गया तो यहाँ पर क्या आ गया, ये डबल बॉन्ड O होगा, डबल बॉन्ड O होगा तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, सो दिस विल गो हियर, ये वाला गया यहाँ पर। जैसे ये वाला गया यहाँ पर, अब ये यदि मैंने इस ऑक्सीजन को स्टार लगा दूं, मैं एक यहाँ पर मैं इस ऑक्सीजन के साथ एक स्टार लगाता हूँ, स्टार लगाता हूँ ताकि हमें ये दिख जाए कि ये ऑक्सीजन कहाँ पे जा रहा है। सो इफ आई पुट अ स्टार ओवर देयर, देखो यहाँ पर मैं इस पे स्टार लगा दिया मैंने, ठीक, रादर मैं इसको ऐसे यूज करूं, ये वाला लूज देता हूँ मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये डार्क ब्राउन, ये वाला ले लिया। एंड सो इन दिस केस इफ आई से इट लाइक दैट, ये वाला यहाँ से ये स्टार वाला हमारे पास ये ऑक्सीजन है, सो इन दैट केस क्या होगा, ये वाला बॉन्ड इधर गया तो ये वाला बॉन्ड जो है वो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस साइड आ जाएगा। सो एज ए रिजल्ट व्हाट यू विल हैव, ये ऑक्सीजन हमारा अलग हो गया। तो यहाँ से क्या बन रहा है, ये C डबल बॉन्ड O बन जाएगा यहाँ पर, यहाँ भी C डबल बॉन्ड O बन जाएगा, और यहाँ पर क्या रह गया, ये एक ऑक्सीजन बचा हुआ रह गया। सो व्हाट द प्रोडक्ट्स यू वुड हैव, नंबर 1 पहला प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास ये वाला, एक तो ऑक्सीजन मिल गया मुझे, यानी यहाँ से एक ऑक्सीजन ये वाला स्टार वाला ऑक्सीजन मिला। दूसरा जो बचा हुआ है हमारे पास वो ये है, एक में हमारे पास बन जाएगा ये डबल बॉन्ड C, ऐसे लिया डबल बॉन्ड O लगा दिया, प्लस दूसरा बनेगा वो बन जाएगा कुछ ऐसा,
यानी ये C डबल बॉन्ड O ये वाला ऐसे है, और ये ऑक्सीजन, यही जो हमारे पास नेसेंट ऑक्सीजन है बच्चों, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर, यही नेसेंट ऑक्सीजन जिंक के साथ या Me2S के साथ रिएक्ट करता है, एंड सो हियर वी कैन सी दिस ऑक्सीजन, सेम ऑक्सीजन, ये स्टार वाला ऑक्सीजन है, प्लस जिंक ले लिया, सो दिस इज फॉर्मिंग ZnO बन गया यहाँ से, और if it would have been Me2S plus this O star, so this is forming Me2SO, MES double bond O, Me, यानी ये नेसेंट ऑक्सीजन था जो कि इसने जिंक को ऑक्सीडाइज कर दिया या Me2S को ऑक्सीडाइज कर दिया। यदि मान लो हम लोग, हमारे पास ये ऑक्सीजन नहीं होता, यदि यह ऑक्सीजन हमने लिया यहाँ पर, यदि मान लो जिंक और Me2S को मैं यहाँ से हटा दूं, तो फिर क्या रह जाता, यदि मेरे पास यह जिंक नहीं होता, Me2S नहीं होता, उसके बदले मान लो यहाँ पर ये HCHO रहता, तो ऑक्सीडाइज होकर क्या बना देगा। सो इफ आई इमेजिन इट टू बी लाइक दिस, यदि मैं इसको ऐसे इमेजिन करूं यहाँ पर कि if there were no zinc or Me2S, यदि जिंक और Me2S नहीं है, so in that case if one of the product is like this one CH3CHO, यदि हमारा एक प्रोडक्ट बन रहा है प्लस ये ऑक्सीजन वाला होता हमारे पास O स्टार, then it would have been converted to CH3COOH, जिसको हम लोग ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस कहते हैं। So this is what logically we can correlate with this particular reaction, जब हमारे पास रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस है तो जिंक का होना, जिंक के कारण से ही ये जो कहानी हमारी चल रही है कि जिंक के कारण से ही ये क्या होता है, सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन तक रुक जाता है, या Me2S के कारण से ये रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन तक रुक जाता है। यदि यह नहीं होता देन थिंग्स वुड हैव बीन टोटली डिफरेंट हो जाता उस केस में। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द मैकेनिज्म इज, यही हमारा आइडिया है इसके पीछे, कैसे मोनोजोनाइड बनाया हमने, कैसे उसके बाद हम लोग